begin with the session. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattar. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hope all of you are doing well. It is my great pleasure to welcome you all to this session organized by IMSA, the Initiative of Medicals for Service and Academics. So, my name is Muhammad Athar Saifuddin. I'm from 2K20 batch from MNR Medical College. Before starting this session, I want you all to brief what is IMSA. IMSA stands for Initiative of Medicals for Service and Academics. It is a non-profit initiative taken by medicos from all over Telangana with an aim to create a unified platform for medical students working towards self-improvements and upliftment of society under the divine guidance of Islam. The purpose of IMSA is to the sole purpose of IMSA is to please Almighty Allah. We felt the need to have a Muslim medical community platform which work on the wide aspects ranging from academics, tarbiyat, personality development, and social service, all under the divine guidance of Islam and on the ways of and on the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So let's embark on a journey to strengthen our iman, elevate our skills, and serve humanity with compassion. So, today's session is related to first year exams. Let me ask you some questions. You are, free to write in the chat. How many of you all have started preparing for your finals? Uh, just write in the chat box. So, how is your prepare? My question should be, how is your preparation? Okay. It's not like कौन start करे क्या कहाँ तक आया progress. How is your preparation? How was first year? How is your preparation? All right, I can see lots of responses. Thinking to start from today in the name of Allah, right? MashaAllah. Preparation for internals, not for the finals as such. Okay. Okay, all right. All right, chalo, right. अच्छी बात है, right? At least some people, at least I can see many of you have started working for your exams. Okay. So basically, I think your exams will be, in the end of July और क्या बोलते हैं अगस्त में रह सकते हैं मेरा अंदाजा ऐसा है क्योंकि आंध्रा का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया राइट एग्जाम्स का so keeping all those things in mind we have planned to organize this session so इसमें main things we want to cover is how you should pass your exams ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप लोगों ने क्या बोलते हो एमसीक्यू पैटर्न था आपका कब से कब से था आपका एमसीक्यू पैटर्न इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यू ऑल डिड एमसीक्यू थिंग्स देन उसके बाद थोड़े लॉन्ग टर्म भी लिए होंगे तो कम्प्लीटली आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ो और एमसीक्यूज दिए हो तो यही क्या बोलते हो आपका रूटीन था ठीक है नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू थियरी and the main thing in the main the difficult task main task in MBBS is to clear your university exams तो अब ये एग्जाम्स अपन कैसा क्लियर करेंगे व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड डू और क्या बोलते हैं अपन कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे ठीक है अपने को एग्जाम्स पास होना है यहाँ पे विथ ऑल दोस रिसोर्सेस अवेलेबल ठीक है टू स्टार्ट विद द सेशन first I would like to first we will take biochemistry subject for this subject I would like to call
Saja Awais Rahman from Maheshwara. He's your senior of 2022 batch. So I would like to call him on the. I would like to call him and take the stage. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर आप ये सेटिंग में एनेबल कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करने का। Yeah, you're good to go. थैंक यू सर। Meanwhile, I ask everybody of you to just keep your mics mute so that there should not be any disturbance in between. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, दिस इज ख्वाजा अवैस रहमान, 2022 बैच, सेकेंड ईयर, फ्रॉम महेश्वरा मेडिकल कॉलेज। तो अभी बायोकेमिस्ट्री से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो कमिंग टू इंट्रोडक्शन, देखिए मेडिसिन में वी हैव अराउंड 18 to 19 सब्जेक्ट्स। पूरे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ईयर में भी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिनको आप बोल सकते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी या फिर कम प्रायोरिटाइज करना। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि सब्जेक्ट के डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आपको टाइम कितना अलॉट करना है आपके प्रिपरेशन में, टू मेक श्योर कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली अलाइन हो रहे इन एस्पेक्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ईयर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसके बाद आते फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि यू आर गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टुवर्ड्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ एनाटॉमी एंड देन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो अभी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिविजन्स। तो एग्जाम से पहले आपके मिनिमम जो एटलीस्ट लॉन्ग आंसर्स है, इससे क्वेश्चंस है, मिनिमम 2 रिविजन्स आपके कंप्लीट करना ज़रूरी है, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे आप कॉन्फिडेंट रहें। एटलीस्ट जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट PYQ से, उनका रिवीजन हो जाना और वो क्वेश्चंस को लेके आप कॉन्फिडेंट रहना। और हमेशा अपना फोकस अच्छे से रखिए व्हेन इट कम्स टू हाई वेटेज चैप्टर्स, जैसे मेटाबॉलिज्म्स है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, और ऐसे चैप्टर्स। और एक और चीज़ ये नहीं भूलना है कि सिर्फ हम लोग को थियोरी एग्जाम्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल्स भी है। तो आप सिर्फ थियोरी पे फोकस करें और प्रैक्टिकल्स को बस आपके कॉलेज के ऊपर छोड़ दिए कि भाई हमारे प्रोफेसर्स मैनेज कर लेते हैं, वो एक बिल्कुल गलत ब्लंडर हो जाता। प्रैक्टिकल्स का भी प्रिपरेशन आप उतना ही इंटरेस्ट लेके करना जितना थियोरी पे आप अपना दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों में पास होना है ना। फाइनल रिजल्ट आप क्यूमुलेटिव दोनों में पास होना है, तो थियोरी प्रैक्टिकल दोनों को क्लियर करना है। अभी पहली चीज, वीडियो सोर्सेस। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप साल के शुरुआत से जो वीडियो सोर्सेस को फॉलो कर रहे, अगर नहीं भी कर रहे, तो अभी चेंज लाने का वक्त नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से कोई प्लेटफॉर्म्स, मैरो या प्रेपलैडर या फिर कुछ भी ऑस्मोसिस यूज कर रहे, जिस चीज़ से फेमिलियर है उसी को यूज करिए। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो मतलब ऐसा बोल रहे कि कुछ प्रिपरेशन कुछ खास हुआ नहीं और अभी लास्ट मोमेंट पे वी नीड हेल्प, वी नीड गुड और एफिशिएंट वीडियो रिसोर्सेज, तो आई वुड सजेस्ट डॉक्टर राजेश जम्बुलकर के यूट्यूब का फ्री रिसोर्स। वहाँ पे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने इन लेस देन 20 to 25 मिनट्स में कवर कर देते। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये बोल रहे कि मेरा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट निल है या फिर आई एम स्केर्ड, तो उनके लिए वीडियो रिसोर्स राजेश जम्बुलकर इज वेरी गुड। कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके लेंदी लेक्चर्स देखना इज पॉइंटलेस ये टाइम पे, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट्स कवर करना है और तीनों में पास होना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये ऑस्मोसिस वगैरह जो भी है, इफ़ यू आर यूज टू वॉचिंग देम साल के शुरुआत से, तो वही करिए। अगर अभी अभी सीखना शुरू कर रहे, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, देन राजेश जम्बुलकर इज फाइन। कमिंग डाउन टू क्वेश्चन बैंक्स। अभी क्वेश्चन बैंक्स का ऐसा है, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे, हर टॉपिक को टच करे, थोड़ा बहुत आइडिया है, प्लीज डो नॉट गो विद क्वेश्चन बैंक्स। लास्ट के 1 महीने पहले, 40 दिन पहले आप क्वेश्चन बैंक्स निकाल के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अभी फोकस करिए आपके टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट करने का। और वो स्टूडेंट्स जो बोल रहे कि हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कोई एक क्वेश्चन बैंक को पकड़िए,
हाजी अली या टाइम्स मेडिको, या आपको उसके साथ साथ पीवाईक्यूज करना भी जरूरी है। अगर आप हाजी अली कर रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस करिए, उसमें पीवाईक्यूज भी कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हाजी अली पूरी करने के बाद पीवाईक्यूज से थोड़ा टैली कर लीजिए कि पीवाईक्यूज में कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसको ज्यादा स्टार्स है और शायद ये क्वेश्चन बैंक में कवर ना हो। तो बस आपकी तसल्ली के लिए एक बार वो भी चेक कर लेना जरूरी है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने प्रिपरेशन के साथ, आपको लग रहा है कि आई हैव एनफ टाइम, और भी थोड़े एरियाज में मैं देख लेता हूँ जो अननोन टेरिटरीज है, तो टाइम्स मेडिको में जा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा थोड़ा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बैंक को पकड़िए, आइदर सिया और हाजी अली, और कोशिश करिए कि उनमें से पूरे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते। दैट्स इट फॉर दिस वन। अभी कमिंग टू बुक रिसोर्सेज। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है सत्यनारायण और वासुदेवन, आप स्टार्टिंग से वो बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप उसी में हाईलाइट करें, आप मतलब आपको आदत हो के वो बुक्स की, तो अभी एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही बुक्स को फॉलो करना है आपको, सत्यनारायण या वासुदेवन। अगर आप टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े, आपके पास कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो जैसा मैं वीडियो सोर्सेस में मेंशन करा, आपको डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर के नोट्स, सॉरी वीडियोस देखना है, अपने खुद के नोट्स बनाना है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ हाईलाइट करें, तो आप उसी से पढ़िए। राजेश जम्बुलकर इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु फील लेस कॉन्फिडेंट एंड हु आर काइंड ऑफ स्केर्ड व्हेन इट कम्स टू बायोकेमिस्ट्री। अब ये वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए, आप जितना भी नॉलेज गेन करें, आप जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे ना, वो सबको आपको प्रेजेंट करना है, इंटरप्रेट करना है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर के साथ, आपकी नॉलेज क्या है आप उसको बता रहे हैं, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आई नीड दिस स्कोर। तो पेपर प्रेजेंटेशन में पॉइंट वाइज हम लोग आकर डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में जैसा सबको मालूम है कि कोई डायग्राम्स नहीं रहते, देन हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर्स ऑन द पेपर। तो दो या तीन तरीके हैं इसके, फ्लो चार्ट्स है और टेबल्स है। देखिए, जो मेन कोर चैप्टर्स है, मेटाबॉलिज्म्स है, उनमें आप पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, आप पॉइंट्स में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि देयर इज अ सीक्वल। हर चीज के बाद देयर इज पॉइंट टू पॉइंट मेटाबॉलिज्म हैपनिंग, तो आपको फ्लो चार्ट में ही प्रेजेंट करना है उसको। तो याद रखो कि मेटाबॉलिज्म्स के उसमें आपको सिर्फ फ्लो चार्ट्स पे फोकस करना है। और एक चीज है टैबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल्स। जैसे कि थोड़े क्वेश्चंस है, थोड़े टॉपिक्स में एंजाइम इनहिबिटर्स ले लो एग्जांपल, या फिर ट्यूमर मार्कर्स है, या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स है। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, तो डिफॉल्ट आपको आपको प्रैक्टिस रहना, आपको याद रहना कि इन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। एकदम नीट रहता, टाइडी रहता, एकदम कंसाइज रहता। जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर देखना चाह रहा है वो आप उसके सामने प्रेजेंट कर रहे, तो कन्विंस हो जाता है एग्जामिनर। और अगली चीज, पेपर्स यूज करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। सफिशिएंट पेजेस रहते, 54 to 58 पेजेस रहते हैं। आपको हर क्वेश्चन, हर इंडिविजुअल पेज में लिखने का चांस मिलता। तो अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर्स भी अटेम्प्ट कर रहे, सिर्फ 3 या 4 लाइन का आंसर लिखे, तो वो पेज में फिर से अगला आंसर कंटिन्यू मत करिए। टर्न योर पेपर एंड स्टार्ट योर आंसर, द नेक्स्ट आंसर ऑन अ वेरी फ्रेश पेज। और आंसर लिखना कैसे, पैराग्राफ्स आर अ नो गो। चाहे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, आपको पैराग्राफ्स लिख के एग्जामिनर को बोर नहीं करना है। आप जितना हो सके एग्जामिनर को एंटरटेन रखना, पेपर अच्छा दिखना। आप इंटरप्रेट, जो भी डेटा इंटरप्रेट कर रहे, पॉइंट्स में रहना, फ्लो चार्ट्स में, टेबल्स में, सिर्फ पॉइंट्स में लिखना। अगर पैराग्राफ में लिखे तो बहुत बोरिंग हो जाता है, एग्जामिनर को बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें से कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को निकालना, और कन्विंस होने के लिए कि दिस स्टूडेंट इज डिजर्विंग ऑफ अ गुड स्कोर बोलते। और अगली चीज है सब हेडिंग्स। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग आ जाना है, कि एक स्केलेटन आ जाना। एक ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू हैव टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आप दे देना आंसर को, कि कितने साइड हेडिंग्स में मैं लिखने वाला हूँ। एक ही साइड हेडिंग के अंदर पूरा आंसर मत लिखिए। अगर आपको इंप्रेसिव बनाना है, पेपर को कन्विंसिंग बनाना है, तो मल्टीपल साइड हेडिंग्स में डिवाइड करना है क्वेश्चन को। ब्लैक पेन से साइड हेडिंग लिखना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो कंटेंट है उसको पॉइंट वाइज लिखना है, फिर से पॉइंट्स में लिखना है। और एक चीज, ये एक अच्छी ये जो है ना हाईलाइट करने का या अंडरलाइन करने का, ये बहुत स्मार्ट टैक्टिक है एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए, कि आप उसको प्लेट पे खाना रख के दे रहे कि सर, दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट यू शुड लुक एट। आप चाह रहे कि एग्जामिनर का अटेंशन वो कीवर्ड्स पे, वो इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पे उनकी नजर पड़े। शायद वो सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज देख के आपको स्कोर देता था, और वो पूरा आंसर पढ़ने की मेहनत भी नहीं करता। आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स,
जो आप चाह रहे कि एग्जामिनर देखे, वो कीवर्ड से कन्विंस होके उन जल्दी आपको स्कोर दे देना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। वेल प्रेजेंटेड कलरफुल पेपर विदाउट अप्रोप्रिएट कंटेंट इज यूजलेस। आपको कुछ भी कचरा स्टोरी नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्चुअल कंटेंट लिखना है, फैक्ट्स लिखना है और मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना है। और अगली बात आई, ये सब चीज मैं जो बोला आपको कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स बोलते हैं, आपके सीनियर्स बोलते हैं। अब एक चीज जो आपको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द रेस्ट, द थिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट इज क्लिनिकल्स। आप एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे, क्लिनिकल्स मतलब आपको सर्जरी रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड या पैथोलॉजी रिलेटेड कुछ उतना ज्यादा डिटेल या फिर इंटेंसिव नहीं लिखना है। फर्स्ट ईयर के होते हुए सिर्फ आपको क्लिनिकल्स के नाम, डिसीज का नाम और वो कंडीशन अगर आप मेंशन करें, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता, क्योंकि यू विल स्टैंड आउट एंड इट इज मोर लाइकली दैट योर पेपर विल बी बेटर देन द प्रीवियस वन और आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। थोड़े लॉन्ग आंसर्स रहते हैं, जैसे कि आयरन मेटाबॉलिज्म है या फिर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, तो वहां पे आप पूरा आंसर लिख दिए, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा आप सारे सब हेडिंग्स में लिख दिए। लास्ट में क्लिनिकल्स में यू नीड टू मेंशन, लेट अस से आयरन है, तो आयरन के डेफिशिएंसी में क्या हो रहा, देयर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन के टॉक्सिसिटी में क्या हो रहा, हीमोक्रोमेटोसिस है, हीमोसिडेरोसिस है। सिर्फ आपको ये वर्ड लिखना काफी है, जिससे एग्जामिनर कन्विंस हो जाता और आपका स्कोर रिलेटिवली अच्छा आता। और वैसे ही ले लो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, तो यू नीड टू राइट नॉर्मल सीरम लेवल्स ऑफ कैल्शियम, अगर कम हो गया तो क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, टेटनस और हाइपरकैल्सीमिया। तो बस ये याद रखो कि ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी अगर कनेक्टेड क्लिनिकल है जो रेलेवेंट है, तो उसको कैसा भी लिखना है, आपको कैसा भी लिखना है, चाहे वो एक या दो या तीन क्लिनिकल, सिर्फ नाम लिखना है। और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते आपके एग्जामिनर, सिर्फ अगर आप नाम लिखे उसको मेंशन करें तो काफी है, दे विल बी कन्विंस्ड। मूविंग ऑन टू एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए ये बहुत क्रूशियल है, टाइम कैसा मैनेज करना। देखो एक चीज याद रख लो, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, रिलैक्स करना, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाता, पहली चीज, आप आंसर शीट बुकलेट ओपन मत करिए। 2 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट सिर्फ पीसफुली गो थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में स्पॉट करो आप कौन सा क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है। और जो तीन सेट्स है, तीनों सेट जो है, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स में, आप किस में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपके दिमाग में पहले आपको एक मैपिंग आ जाना कि कौन से क्वेश्चन मेरे स्ट्रांग है, कौन सा सेट मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पेपर आते ही एमसीक्यूज, पहली पहली चीज आप जो करना है, आपको एमसीक्यूज क्लियर करके उस उधर से मूव ऑन होना है। एक छोटा आपको सेंस ऑफ विन या सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो आपको आपका मोरल बूस्ट करता, तो आपको एमसीक्यूज पहले कंप्लीट करना है। इनिशियल 10 to 15 मिनट्स में जो क्वेश्चंस यू आर वेरी श्योर उनको टिक करो और ओएमआर में बबल कर दो। जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल है और आपको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको सर्कल करके लास्ट के 5 मिनट में देखने के लिए रख दीजिए। लेकिन आई सजेस्ट जितना हो सके पूरे क्वेश्चंस शुरुआत के 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना। इनिशियली क्लोज विद द एमसीक्यूज। अब कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट 3 सेट, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझना है और एनालाइज करना है कि कौन सा सेट आपका स्ट्रांग है। आप आपके ऐसे क्वेश्चंस दोनों के दोनों अगर आपको परफेक्ट आते, पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, देन मूव ऑन टू वेदर यू वांट टू राइट वीएसएक्यूज और एसएक्यूज। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पूरे वीएसएक्यूज आते, तो पूरे वीएसएक्यूज लिखो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पूरे एसएक्यूज अच्छे से आते, देन राइट गो विद द एसएक्यूज। एंड रिमेंबर वन पॉइंट हियर, आप ऐसा जंबल नहीं करना, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना कि एक लॉन्ग आंसर लिखे, एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट। ऐसा करने से एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता। अगर आप लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करें तो दोनों लॉन्ग आंसर लिखना, शॉर्ट आंसर्स लिख रहे हैं तो पूरे साथ के साथ शॉर्ट आंसर्स लिखना। वीएसएक्यूज तो पूरे एक जगह, आपको जंबल नहीं करना है। डो नॉट मेक द एग्जामिनर स्ट्रगल टू फाइंड एंड लुक फॉर द आंसर्स, उसको पेपर्स पलटाने की तकलीफ मत दो। जितना हो सके सिंप्लीफाई करो एग्जामिनर को, उसका एक्सपीरियंस अच्छा बनाओ, कन्विंस रखो उसको अच्छा स्कोर देने के लिए। और टाइम कैसा अलॉट करना है, जैसे यहाँ पे मेंशन करा, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 10 से 15 मिनट एमसीक्यूज इंक्लूडिंग द बबलिंग। और ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम 30 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, 60 मिनट्स कंबाइंड दोनों लॉन्ग आंसर्स के लिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, 7 क्वेश्चन 70 मिनट। और वेरी शॉर्ट आंसर्स कुछ ज्यादा आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, वो लोग वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर देते, एनलिस्ट 3 पॉइंट्स, एनलिस्ट 4 पॉइंट्स। जो कुछ भी है आंसर आपको 5 5 मिनट में एक वेरी शॉर्ट हो जाता। अगले 30 मिनट में यू विल बी डन विद द वीएसएक्यूज। एंड जस्ट मेक श्योर के लास्ट के 2 से 5 मिनट आप ट्राई टू मेंटेन
लीव सम टाइम टू चेक फॉर योर एरर्स, सो दैट आप पेपर पलटा के कंफर्म कर सकते हैं कि आप यू कैन रीअश्योर योरसेल्फ कि आप कुछ मिस नहीं करें, कोई एमसीक्यू बबल नहीं करे, बिना नहीं छोड़े। वो चेक करने के लिए लास्ट में 2 से 5 मिनट रखिए। और हर आंसर के बाद जो भी पेंसिल से लाइंस वगैरह ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ों के लिए लास्ट में 2 से 5 मिनट आपके पास टाइम रहना ज़रूरी है। और अगली चीज़ है रिविजन। रिविजन्स जब आप कर रहे हैं तो आप पेपर वाइज करना। पहले पेपर 1 रिवाइज कर लिया, पेपर 2, और जब आप पेपर 1 रिविजन लेके बैठे तो पैरेलली आपको देखना है कि चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वेटेज कितना है। तो जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, एंड द चैप्टर्स फ्रॉम विच इट इज वेरी लाइकली दैट यू विल गेट एन लॉन्ग आंसर, जिससे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा है, पहले आपको वो कंप्लीट करना है। क्योंकि व्हेन यू कंप्लीट चैप्टर्स विद रिलेटिवली हायर वेटेज, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता कि ये चैप्टर से बहुत लाइकली है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड आई एम डन विद दोस चैप्टर्स। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स, जैसा एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ट्यूमर मार्कर्स है। ये ऐसे चैप्टर जो है ना, इनको पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद मूव ऑन टू द लिटिल छोटे छोटे चैप्टर्स जो भी आते हैं उसके बाद। और रिवाइज कैसे करना है आपको, वंस अगेन आपके जो हैंड रिटन नोट्स है और रनिंग नोट्स क्लास के जो है उससे रिवाइज करना है। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, देन एज आई टोल्ड यू, वीडियो रिसोर्सेज और बुक सोर्सेस में के जाम्बुलकर सर के जो नोट्स रहते हैं, उनको आप क्विक रिविजन के जैसा यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के नोट्स भी है, अगर आपको सिर्फ एक आइडिया आना है कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए यू कैन गो विथ जाम्बुलकर सर के नोट्स। बस एक बार पेजेस पलटा के देख लो कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। और जस्ट बी थरो विद द ऐसे क्वेश्चंस। और रिवाइज करते समय आपको पहले ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद वीएसएक्यूज आप रिवीजन करिए। तो वेटेज के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। चलिए, दैट्स इट फॉर बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद लास्ट में क्यू एन ए सेशन होता, अगर कोई भी डाउट है वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सैफुद्दीन सर, लेट्स मूव ऑन विद अनदर सब्जेक्ट। Right, Jazakallah always. I want everybody of you to mute yourself so that there should not be any issues during the session. आप लोग के माइक्स खुल गए छोड़ोंगे, ठीक है। तो बाय दिस टाइम यू ऑल आर अवेयर दैट ये बबलिंग का मसला आपका क्या है, बबलिंग का सीन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। नीट में भी था, अब इधर भी आ गया, क्या है रे भाई ये दिमाग खराब। तो डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग इशू, ठीक है। खाली 10 MCQs रहते हैं, 10 MCQs सॉल्व करना है। सेम विल बी या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में ऐसा रहेगा। सो अवेश कैन यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन? Yeah, all right, thank you. So we are done with the biochemistry part. Now let's move on to our next subject, which is physiology. Okay. So for this, I would like to call Sumayya from Mallareddy Medical College to take on the stage. Is my screen visible to everyone? Hello. Yeah, it's perfectly fine. You can proceed. Assalamu alaikum everyone. This is Sumayya Sajjad, currently second MBBS student from Mallareddy Medical College for Women. Today I'm here for the exam preparation guidance of physiology. So let's start. In this session, we'll try about the strategies to tackle in physiology for the professional exams and the approach towards revision, do's and don'ts to save and manage time efficiently. So let's begin. Firstly would be the video sources. Video sources mein first Dr. Najeeb, as many of you might know him. He is the best lecturer out there for physiology, I believe. Following Ninja Nerd, Dr. Raghavendra Sherikar. Dr. Raghavendra Sherikar has covered major topics of physiology in under 15 to 20 minutes. So I would recommend him also. And EduClub. EduClub is a channel on YouTube which has the best
video lectures for CNS and special senses. And lastly, Akshat Juneja. He is also a popular one amongst the lecturers on physiology. So the next would be the video. So next would be the question banks. So my personal opinion is to stick to just one question bank and practice each and every question mentioned in it, rather than referring multiple question banks. Because and the best one I believe is Haji Ali sir's question bank. Haji Ali sir's question bank, why is it so important bole to Haji Ali sir has covered each and every topic of all the chapters in a very proper manner, so that you can just refer it once. और हाजी अली सर हैज डन दिस ग्रेट जॉब. तो हाजी अली सर का क्वेश्चन बैंक इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप मान लो आप हाजी अली सर का क्वेश्चन बैंक का हर क्वेश्चन एक बार देख लिए या फिर अटेम्प्ट कर लिए, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पेपर वुड बी फ्रॉम दैट ओनली. सो दैट इज द बेस्ट आई फील. और अगर आप हाजी अली सर का कर लिए क्वेश्चन बैंक, तो डिस्टिंक्शन is a piece of cake. So, and the other question banks would be SIA question bank as well, and Falcon question bank, and even Times Medico. So you can refer those question banks as well. And the next would be the book sources. अब book sources पे ये है कि अब ये point नहीं है कि आप कोई नई book try करें. आप जो book starting of the year से follow कर रहे हैं आपकी preparation के लिए, वही books आप follow करिए अभी भी. और अब अगर आप कोई दूसरी बुक पे शिफ्ट करेंगे तो वो एक मेस क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में, और आपको खुद अपना ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा इसमें. तो अभी तो आप कोई भी बुक शिफ्ट मत करिए, जो आप फॉलो कर रहे थे वही करिए. एंड द बेस्ट वंस वुड बी गाइटन एंड हॉल, एज यू ऑल नो, जीके पाल, AK जैन, एंड इवन Sembulingam as well. Sembulingam is popular amongst the people who just try to review the questions and the chapters before exam. So अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो देख लीजिए, वरना जो आप बुक हमेशा से फॉलो करते आए हैं वही फॉलो करिए. अब चेंज मत करिए. अब चेंज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा एग्जाम में. और फिर हाँ, और मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी बुक फॉलो करो, लेकिन डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स एक बार अगर पॉसिबल है तो गाइटन एंड हॉल से देख लो आप. वो स्टैंडर्ड बुक भी है और साथ में उसमें इतना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का, ताकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती वो टॉपिक को लेके. तो इफ पॉसिबल गाइटन एंड हॉल के आप एटलीस्ट फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स रिफर कर लीजिए. अब द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पेपर प्रेजेंटेशन. सो फर्स्टली present the best known questions to you first, so that it creates a positive impression on the examiner. अगर आप जो आपको मालूम है क्वेश्चन वो पहले प्रेजेंट करेंगे तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ, दिस स्टूडेंट नोज द सब्जेक्ट. फिर उसके बाद कंप्लीट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर सेक्शन. मतलब इफ यू आर स्टार्टिंग LAQs, गेट डन विद LAQs फर्स्ट. डोंट इंटरमिक्स देम विद SAQs और VSAQs. और नेक्स्ट अगर आप SAQs कर रहे हैं तो वैसे ही VSAQs उसमें इंटरमिक्स मत करिए. एग्जामिनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता पेपर्स टर्न करके कौन सा क्वेश्चन किधर लिखे ढूंढने में. उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता और आपके मार्क्स जितने आने चाहिए उससे कैसा भी रिड्यूस हो जाते. तो आप क्वेश्चंस को इंटरमिक्स मत करिए. एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, तभी नेक्स्ट सेट पे आप मूव ऑन करिए. एंड ट्राई टू मेंटेन अ लेजिबल हैंडराइटिंग थ्रू आउट द पेपर. एक लेजिबल बोले तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं, बट ऐसी हैंडराइटिंग जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि एग्जामिनर्स पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उन लोगों को करेक्ट करने रहते. अब आप उसमें कुछ भी कैसी भी हैंडराइटिंग में लिखे, तो अगर आप कंटेंट प्रॉपर लिखे तो भी आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग इज अंडरस्टैंडेबल नहीं है. और फिर ड्रॉ एज मेनी फ्लो चार्ट्स एज पॉसिबल, सिंस इट नॉट ओनली लुक्स गुड बट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड ड्रॉ ग्राफ्स वेरेवर नेसेसरी. अब फ्लो चार्ट्स एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जिसमें अब फिजियोलॉजी में डायग्राम्स जितना एनाटॉमी में यूज होते उतना ज्यादा फिजियोलॉजी में यूज नहीं होते. तो फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स ये एक बेटर प्रेजेंटेशन डिपिक्ट करता. तो अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इवेंट्स एट NMJ आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का आप एक प्रॉपर अच्छा नीट डायग्राम बना के फ्लो चार्ट में उसके इवेंट्स क्या होता, साइनैप्स के पास क्या होता, पोस्ट साइनैप्स क्या होता, प्री साइनैप्स क्या होता, ये आप एक फ्लो चार्ट के मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते, जो अंडरस्टैंडेबल है और
वेल प्रेजेंटेड फॉर्म है एक आंसर का। अब वैसे ही आप ले लीजिए शॉक फिजियोलॉजी, आप सब पढ़े ही होंगे। तो शॉक फिजियोलॉजी आप इन द फॉर्म ऑफ अगर फ्लो चार्ट लिखे टिल द कोमेटोज एंड डेथ स्टेट, तो वो एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। और फ्लो चार्ट से अच्छा आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्पेशली ये पार्ट को पॉइंट्स या फिर पैराज में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो जो चीज आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ला सकते हैं ना, तो उसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लाइए, वो ज्यादा बेटर रहता प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। और एग्जामिनर भी मतलब फ्लो चार्ट क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ के फिनिश कर सकते। वही अगर आप पैरा लिखे तो वो एक लंबी सागा दिखती, और वो मतलब ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, तो आप वो मत करिए। या तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मिक्स करके, या फिर फ्लो चार्ट्स ऐसे फॉर्मेट में लिखिए। जैसा फ्लो चार्ट्स हम लोगों को रीनल में भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं हम लोग, एसिड बेस रेगुलेशन टाइप्स ऐसा। और डोंट राइट इन एक्सेस इवन इफ यू नो इट ऑल। अगर अब एक मान लीजिए एक एसएक्यू है, हमको एसएक्यू के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम हर चीज तो नहीं लिख सकते, और हर चीज लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आप हर चीज लिख देना चाहेंगे ये सोचिए कि मेरे को शायद फुल मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है बस। वो टाइम जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके वीक है उसको दे सकते, वो टाइम आप इसमें लगा के टाइम वेस्ट हो जा रहा है इनफैक्ट। और ट्राई टू राइट द आंसर्स पॉइंट वाइज रादर देन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में लिखे तो वो एक स्टोरी बन जाती, वही अगर आप पॉइंट्स में लिखे तो वो एक बेटर फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से आपको बेटर मार्क्स भी मिल सकते। पैराज क्या है, बस ऐसा एक स्टोरी पढ़े एक स्टोरी पढ़े। और पैराज अब थोड़े आंसर्स है जिसमें आप लोग फ्लो चार्ट्स कर सकते, तो आप पैरास क्यों लाते हो उसमें, मतलब ये उसमें पैरास फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इस पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। अब नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द रिविजन टिप्स। द बेस्ट सोर्स ऑफ रिविजन कुड बी फ्रॉम द नोट्स यू हैव मेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अभी तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो जो आप नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं शुरू से, वो नोट्स को ही फॉलो करिए। इसमें क्या होता, एक बड़ी टॉपिक भी 5 to 10 मिनट्स में वाइंड अप कर सकते हैं आप, तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड while you are revising, first try and revise the chapter with high weightage, and then while revising get done with LAQs first, so that एक sense of confidence आ जाता आप में कि अगर कोई भी LAQ पूछा तो मैं वो कर सकता हूँ। and next move on to SAQs and then VSAQs। और हर पेपर में एटलीस्ट एक 8 कॉम क्वेश्चन इज टू बी देयर, तो वो 8 कॉम क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाजी अली सर आप लोगों के टेलीग्राम पे शायद से एक लिस्ट भेजे होंगे 8 कॉम क्वेश्चंस की, तो अगर आप वो क्वेश्चंस का सेट एक बार अच्छे से देख के थोड़ा सॉर्ट कर लिए, तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में वो बेनिफिशियली रहेगा। फिर आपको एग्जाम हॉल में उसके लिए अलग से सोच के अलग से टाइम अलॉट नहीं करना है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट आप ट्राई करिए एमसीक्यूज एंड बबलिंग विद इन 15 मिनट्स कर लीजिए, तो वो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद LAQs, 2 LAQs है ना, 2 ऐसे क्वेश्चन, तो ईच ऐसे क्वेश्चन अगर 30 मिनट्स ले रहे हैं, या फिर आप उसे जल्दी भी लिख सकते, तो 45 to 60 मिनट्स में उसको वाइंड अप कर दीजिए। और अगर आप LAQs और MCQs कर लिए, तो एक आप में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ आई हैव डन दिस पार्ट, अब मेरा इतना ही बाकी है और मैं अच्छे से कर लूंगा। फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू SAQs। 10 क्वेश्चन 10 नहीं सॉरी 7 क्वेश्चंस है, तो फॉर ईच क्वेश्चन इफ यू अलॉट 10 मिनट्स दैट वुड बी ग्रेट, दैट इज मोर देन एनफ इज व्हाट आई फील। फिर VSAQs भी वैसे ही, आप हर क्वेश्चन को 5 मिनट्स अगर देंगे तो 30 मिनट्स में वो भी वाइंड अप हो जाता। 5 to 10 मिनट्स ऑफ बफर इज नॉट पॉसिबल आई फील, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आपके पास अगर रहे, तो आप पेपर एटलीस्ट अपना रिव्यू करके मैं कितना अटेम्प्ट करी क्या करी सब एक बार चेक कर ले सके, तो वो दैट वुड बी ग्रेट। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, नो मैटर व्हाट, डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है पेपर में। राइट एटलीस्ट द वेरी बेसिक नॉलेज यू हैव ऑफ दैट क्वेश्चन। मतलब अगर आपको वो क्वेश्चन, चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा तो क्वेश्चन नहीं रहता मेरे ख्याल से कि आप उसके बारे में सुने भी ना हो, एटलीस्ट यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट समवेयर और द अदर। तो it's not required that you write your MBBS knowledge into that. Even the basic knowledge that you have from your 11th and 12th is also good.
अगर आपके 11th और 12th की कोई बेसिक नॉलेज भी अगर आप उसमें लिख रहे हैं, रिलेवेंट बेसिक नॉलेज, तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन दोबारा आई वांट टू रिपीट इट, attempt all questions no matter what, do not leave a single question, because I've seen people suffering because of leaving questions। तो ये गलती आप लोग मत करिए, चाहे कुछ हो आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए प्लीज। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज लिखिए, ऐसा ज्यादा एडवांस नॉलेज भी नहीं तो नहीं, अगर नहीं आ रही तो, लेकिन बेसिक नॉलेज भी अगर आप लिखे तो अच्छा है। और एक थिंग आई वांट टू मेंशन इज, हर क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है तो उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी लिख दीजिए। वो अप्लाइड फिजियोलॉजी आप लिखने से एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता कि हाँ दिस स्टूडेंट नोज द सब्जेक्ट। तो अगर आप अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखेंगे तो वो आपके लिए बोनस है, समझिए। एटलीस्ट थोड़ा सिम्टम्स तो भी, थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स या फिर कंडीशंस वेयर यू सी देम, ऐसा अगर आप लिखे तो दैट वुड बी ग्रेट। और बस यही था फ्रॉम माय एंड। सो ऑल द बेस्ट गाइस। Again, I want to repeat it, don't leave a single question, please. Try to write in a legible handwriting, manage your time and everything. So that is it, guys. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो सेशन के एंड में देयर विल बी अ Q&A सेशन, so you can ask me there. Thank you everyone. So, all right, Jazakallah khair, Sumaya. So, guys, what was the take-home points? क्या कोई चैट में लिख सकता है क्या? From the physiology subject, from the physiology part of the session. You are all there, right? Yes. Revision is utmost important. Okay. तो मैं कुछ बोल देता हूँ। फॉर फिजियोलॉजी देखो, यू हैव योर फ्लो चार्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और योर राइटिंग शुड बी गुड एंड योर रिविजन शुड बी गुड, ठीक है। these all points you should be, keeping in your mind. So now let's move on to our next subject. Let's move on to our next subject. Can anybody guess क्या है वो subject? एक ही सब्जेक्ट बचा है भाई। Yes, anatomy. Yes, anatomy. Yeah. So everybody feel like it's a nightmare, right? Trust me, guys. अगर आप लोग इसको सही से मतलब अप्लाई कर लिए एग्जाम की स्ट्रेटेजी, it's a piece of cake to clear anatomy. So keeping that thing in mind, let's move on to anatomy. So I would like to call Safwan Afzal from Shadan to take on the mic and brief you all about anatomy exams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. So, myself, Safwan Afzal, I'm from Shadan Institute of Medical Sciences, second prof MBBS student, and I'm a member in IMSA. तो आज अपन एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे कि उस एनाटॉमी एक नाइटमेयर है। हर एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉप स्टूडेंट के वास्ते एनाटॉमी एक नाइटमेयर है। एंड इसको कैसा टैकल करते हैं इंशाल्लाह आज के सेशन में अपन देखेंगे। एंड किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कितना रिटेन करते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दैट अपन जो है थोड़े से बेसिक चीजें देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर सब डिविजन्स, जैसा कि एनाट के सब डिविजन, जैसा कि ग्रॉस, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, जेनेटिक्स एंड ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो बेयरली इंपॉर्टेंट है, बेयरली बेयरली आता थ्योरी एग्जाम्स में, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑस्टियो इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है।
बुक्स, ठीक है, ये तो जनरली बोलने की जरूरत नहीं है, बट आई रिफर इट पास्ट बीडीसी एंड विश्राम ग्रॉस के हस्ते, हिस्टोलॉजी के हस्ते आईबी सिंह, योगेश सोलंके, बाल शेट्टी, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के हस्ते आईबी सिंह है, एंड विश्राम सिंह की एम्ब्रियोलॉजी भी है, ठीक है। न्यूरो एनाटॉमी के लिए बीडीसी विश्राम सिंह, ऑस्ट्रियोलॉजी के लिए बीडीसी विश्राम सिंह, एंड जेनेटिक्स के हस्ते जो सब पीडीएफ्स जो आपको टाइम्स मेडिकोज एंड मेडिकोज के ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो रिसोर्सेस, देखिए एक्सपेरिमेंट करने का तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, जैसा कि प्रीवियस दो स्पीकर्स भी बोल गए हैं, एक्सपेरिमेंट का कोई टाइम नहीं है। आप जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसके लिए उस चीज उसी चीज को फॉलो करिए। अगर नहीं, आप एकदम जो है सो शुरू से शुरू करना है, देन जो है सो आप वीडियो रिसोर्सेज के लिए आप जो है सो जा सकते हैं। जोहारी एमबीबीएस या एंजेलिना आइजैक दोनों भी जो है सो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल है ग्रॉस के वास्ते। एंड डॉक्टर अश्विनी कुमार जो है सो आपको ई गूगल पे मिलेंगे, दैट्स अ पेड सर्विस, दैट्स अनदर डिफरेंट थिंग। बट जोहारी एंड एंजेलिना जो है सो आपको दो में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगर आप इन कंटिन्यूटी में है तो इसको एक्सपेरिमेंट मत करिए, किसी एक को छोड़ के दूसरे पे स्विच मत होइए, चाहे वो रिगार्डिंग टू द बुक्स हो या रिगार्डिंग टू द वीडियो रिसोर्सेस हो। आप लोग जो है सो यही करिए, जो आप लोग चल रहा है उसी को, मतलब उसी को कंटिन्यू करिए, कोई नई चीज मत करिए। बट अगर हाँ कोई शुरू से स्टार्ट कर रहा है तो जोहारी एमबीबीएस, एंजेलिना आइजैक आप जो है सो ग्रॉस के वास्ते रेफर कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी में कोई ऐसा एक स्पेसिफिक चैनल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स है, अलग अलग है। आई डेंट रिमेम्बर द नेम, एक जो है सो मेरे को याद है अमित लेक्चर बोल के, वो बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो, हाँ, अमित लेक्चर वो ये भी याद है। जोहारी भी जो है सो आप हिस्टोलॉजी में रेफर कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज डॉक्टर रोज, ठीक है। एंड ऑस्टियो एंड जेनेटिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। फॉर जेनेटिक्स पीडीएफ्स ही पढ़ लो आप, वही इंपॉर्टेंट है, वही चीज, वही बेस्ट है। एंड ऑस्टियो के वास्ते इफ यू वांट यू कैन रेफर जोहारी, इफ नॉट यू कैन रीड विश्राम एंड बीडीसी, दैट्स एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक्स देखिए, हाजी अली है, हाजी अली क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वो पूरे कर लिए देन डिस्टिंक्शन इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल। एंड सिया की क्वेश्चन बैंक है, उस्मानिया की क्वेश्चन बैंक है। एंड द लास्ट थिंग इज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। हाजी अली क्वेश्चन प्रीवियस 10 to 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हैं। हाजी अली क्वेश्चन में हाजी अली सर के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें हर हर क्वेश्चन को जो है सो हर क्वेश्चन को एनलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। आप अगर वो कर दिए तो आप अगर वो कर लिए तो दैट्स मोर देन इनफ। बट फिर भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के वास्ते बाज वक्त होता है कि हाजी अली बस हो जाएंगी या नहीं, एक्स वाई जेड बहुत चीज़ें दिमाग में आते हैं, तो खाली सेल्फ सेटिस्फैक्शन के वास्ते आप एक बार सिया या उस्मानिया रिफर कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि हाजी अली करे के बाद वो भी जो है आप वही कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि हाजी अली क्वेश्चंस को पूरा थ्रू आउट हो जाओ, उसके बाद सिया और उस्मानिया रेफर कर लो, दैट्स इट। वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर कैसा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप लोग एमसीक्यूज के साथ जाइए, ठीक है। एमसीक्यूज 10 to 15 मिनट्स में आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले पेपर मिले के बाद हरी मत करिए, रश मत करिए। ये बहुत ही ब्लंडरस मिस्टेक है जो मेरे फ्रेंड्स भी करे थे और बहुत सारे लोग करते, कि पेपर आते की जो है सो धन 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 शुरू कर देते। वो चीज, वो बहुत ही मतलब ब्लंडर, ठीक है। एक बार पेपर मिल गए के बाद सुकून से 3 से 5 मिनट लीजिए, लेके जो है सो पेपर को पहले पूरा स्कैन करिए, रेफर करिए कि आपको क्या आता, क्या नहीं आता, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको एक बार पेपर आपको जनरलाइज्ड वे में समझ में आ जाता कि पेपर में क्या है, कैसा लेवल है, क्या है, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। बट पहले पेपर को रिफर करो, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू से शुरू करो। क्यों एमसीक्यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जो है सो अगर आप ये जो थ्योरी क्वेश्चंस है या आप लिखेंगे, अटेम्प्ट के भी एक आध मार्क मिल जाता आप। बट एमसीक्यूज का ऐसा नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट करें सही निकला तो 1 है, नहीं तो 0 है। तो पहले, और एक चीज ये भी हो जाती है एमसीक्यूज पहले करने से कि आपको एक क्या बोलते हैं, ब्रेन में आप एक सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ 10 मार्क्स का तो मेरा हो गया, ठीक है। ठीक है, 10 मार्क्स तो मेरे हो गए, अब मेरे को करना है फॉर अदर दूसरे जो है सो 50-60 मार्क्स और 30-40 मार्क्स टच करना है मेरे को, ठीक है। वैसा जो है आपका एक माइंड सेट रहता है कि आपको जितने मार्क्स और फेच करना है, वो एक रहता है कि हाँ 10 मार्क्स तो हो गए मेरे, बाकी का मैं कर ले सकता हूँ, ठीक है। वो एक रहता
एंड दूसरी चीज जो है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ट्राई करिए, क्वेश्चन पेपर जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो है सो वन सेट ऑफ क्वेश्चन पहले पूरा कीजिए। अगर आप एलएक्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो एलएक्यूज ही करिए। ऐसा नहीं कि एलएक्यू कर दिए, फिर एक एसएक्यू कर दिए, फिर एक बीएसएक्यू कर दिए। वो चीज बहुत मतलब एग्जामिनर को जो है सो उसका जो है सो वो हो जाता, फ्यूज ऑफ हो जाता उन्हें, ठीक है। स्क्रैम्बल मत करो, अच्छे से लिखो, ठीक है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले करो। पहले अगर एलएक्यूज कर रहे हैं तो एलएक्यूज, एसएक्यूज कर रहे हैं तो एसएक्यूज, या बीएसएक्यूज कर रहे हैं तो बीएसएक्यूज, ठीक है। एनाटॉमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आप बहुत ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं, ठीक है, डायग्राम से। अब डायग्राम्स जो है सो आप, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आंसर के बीच में ड्रॉ करना या आंसर के आखिरी में ड्रॉ करना या आंसर से पहले ड्रॉ करना। देखो वो तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप करते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आंसर के पहले करो, ठीक है। आंसर के पहले करने से क्या होता है कि आप जब डायग्राम आप कर देते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको नीचे क्या लिखना है, ठीक है। जैसा कि ब्रेकियल प्लेक्सस आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेकियल प्लेक्सस आप लिख रहे हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस का शुरुआत होती है C5 C6 C7 C8 T1, फिर वहां पर ट्रंक्स फॉर्म होते हैं, फिर वहां पर डिविजन होता है, फिर वहां पर, ठीक है। तो वो चीजें जो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, पहले आप वो ड्रॉ कर दिए तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ, पहले मेरे को डेफिनेशन लिखना है, फिर मेरे को रूट्स मेंशन करना है, फिर मेरे को ट्रंक्स करना है, फिर मेरे को डिविजन्स करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, ये आप चीजें, ये चीज आप कर दे सकते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करने का ये फायदा है, क्योंकि पहले आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप गैम्बल नहीं हो सकते, आप स्क्रैम्बल नहीं कर सकते चीजों को। आपको जो है एकदम ऐसा, अरे भाई ये क्या है कि याद नहीं आ रहा, वैसा नहीं होता। मैक्सिमम 99% ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर दिए, उसके बाद आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड जब आप डायग्राम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिखते हैं और पहले जब एग्जामिनर डायग्राम देखता, तो उसके लिए जो है सो एक एंटरटेनिंग हो जाता पेपर, क्योंकि उन्हें पेपर खुलते की डायग्राम देख रहा, ठीक है। पेपर खुलते की जब उन्हें डायग्राम देख रहा तो उसके वास्ते जो है सो वो एक एंटरटेनिंग हो जाता, ठीक है। एग्जामिनर को बोरिंग नहीं दिखता आपका पेपर इंटरेस्टिंग दिखता, तो आपको पेपर को पढ़ेगा, ठीक है। और एक क्लीन हैंडराइटिंग मेंटेन करो। देखो क्लीन हैंडराइटिंग से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप एकदम नीट लिखना या एकदम वो करना। अच्छा, हैंडराइटिंग से पहले मैं डायग्राम्स के ऊपर भी एक बार आ जाऊंगा। एक दो चीजें मेरे को डायग्राम के बारे में मेंशन करनी है। डायग्राम्स के बारे में ये नहीं कि आपको एकदम जो है टेक्स्ट बुक में जैसा डायग्राम दिया वैसा ही ड्रॉ करना है, मतलब एकदम ऐसा आर्टिस्ट का जैसा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। आप वहां पर आंसर लिखने जा रहे हैं, आप वहां पर मार्क्स गेन करने जा रहे हैं, पास होने जा रहे हैं, आप आर्टिस्ट बनने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो, ठीक है। डायग्राम्स ड्रॉ करो, दैट डजंट मीन कि आप एकदम आर्टिस्ट बन के जो है सो 15-20 मिनट डायग्राम पे इस स्पेंड कर दे रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है। डायग्राम्स आप जैसे लाइन डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, कलरिंग इंपॉर्टेंट है, मेन चीज, ठीक है। कलरिंग है, जैसा कि नर्व्स को येलो करते हैं, आर्टरीज को रेड, ठीक है, वेन्स को ब्लू, ठीक है, वैसा कलर, ठीक है। जो डायग्राम का जो कलर है वो कलर में मैटर करता, कलरिंग लाइन डायग्राम मैटर करता। एंड पेपर जो है सो कंप्यूटराइज वे में स्कैन होते हैं, ठीक है। तो ट्राई ये करिए, आपके पेंसिल से एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद वो डायग्राम को ब्लैक पेन से आउटलाइन दो। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर, क्योंकि पेपर जो है सो आपका ऐसा बैठ के एग्जामिनर बैठ के चेक नहीं करता, एग्जामिनर कंप्यूटर स्कैन होता है, वहां पर उन्हें चेक करता कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो वहां पर स्कैनिंग में जो है सो आपका डायग्राम लाइट नहीं होना, ठीक है, लाइट नहीं होना, इसलिए डायग्राम को थोड़ा सा डार्क करो, ठीक है। कलरिंग भी कर रहे हैं तो डार्क करो। क्यों? क्योंकि जो है सो कहाँ पर कंप्यूटराइज्ड स्कैन होता है पेपर, ठीक है। तो आप जो है सो वहां पर आपकी आउटलाइनिंग, आपके कलरिंग, आपके लेबलिंग सब दिख के आते हैं, तो लेबलिंग भी ब्लैक पेन से करो, ठीक है। और एक चीज, अब मैं हैंड राइटिंग में आऊंगा, ठीक है। राइटिंग कैसी लिखनी चाहिए? देखो हर इंसान की राइटिंग जो है सो गुड अच्छी नहीं रहती, ठीक है। किसी की बुरी रहती, किसी की अच्छी रहती। अब जिसकी अच्छी रहती है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी राइटिंग से जो है सब मार्क्स फैच कर सकते हैं। बट जिसकी नहीं है उन्होंने क्या करना, ठीक है। तो उन्होंने ये कर सकते हैं कि आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसा कि आप ब्रेकियल लिख रहे हैं, तो आप एकदम अपनी स्क्रैम्बल राइटिंग में मत लिखो, ट्राई करो कि आप ओपन वर्ड्स में लिखो, ठीक है, ठीक है। ताकि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आना, ठीक है। आप अगर ब्रेकियल लिख रहे हैं तो उसको BRACHIAL लिखना पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक, मतलब जैसा कि वो है, तो ये तो बेसिक है, बट एकदम 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 क्लियर एंड क्लीन हैंडराइटिंग मेंटेन करो एग्जाम में, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैराग्राफ्स मत लिखो। पैराग्राफ्स एक स्टोरी दिख जाएगी, स्टोरी उसको बोरिंग दिखेगी, उन्हें आपको मार्क्स नहीं डालेगा। अगर आप नेसेसरी सफिशिएंट कंटेंट भी लिखे तो उन्हें आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो आप जो है सो पॉइंट्स में लिखो, ठीक है।
सब हेडिंग्स डाल के लिखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। फॉर एग्जांपल अगर जो है सो ब्रेकियल प्लेक्सस है, वहां पर जो है सो अगर जैसा कि रूट्स है, जैसा कि C5 टू C7 जो है सो अपर ट्रंक बनाता है, तो वो C5 C7 को आप C5 टू C7 को ऐसा अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि उसको समझ में आना कि हाँ ये बच्चे के पास ये इसको इतनी नॉलेज है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ अच्छा, C5 C7 मेंशन कर दिया, ठीक है, सॉरी C5 C6 ये मेंशन कर दिया, C7 मिडिल ट्रंक को मेंशन कर दिया, ठीक है, C8 और T1 अच्छा लोअर ट्रंक है, ठीक है, बराबर, ये जो है उसको आएगा, ठीक है, ओके। एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू मेंशन क्लिनिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में भी कहा जाता है क्लमकेस सिंड्रोम है, और एक जो है सो और एक कुछ है याद नहीं आ रहा, बट हाँ क्लमकेस एक है, और एक जैसा कि अच्छा क्लिनिकल से भी मुराद ये नहीं है कि आप पूरा क्लिनिकल उसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री लिख दो, जैसा कि विश्राम ने जो पूरा टेबल दिया उसको समराइज करके लिखो। अगर नहीं उसको समराइज करके या नाम भी लिख दिए तो काफी है, या नहीं तो फिर LAQ अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें जो है सो 2-3 पॉइंट समराइज करके लिख दो। ऐसा भी नहीं कि पूरा आपको लिखना है कि ये डिफॉर्मिटी ऐसा होता है, जैसा कि अगर जो है सो आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आप उसके बारे में पूरा लिख दे रहे हैं कि ये रेडियल मैसेक्टमी करना है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं कि 2-4 पॉइंट्स लिख दो कि यहाँ से जो है लिम्फ नोड्स के जरिए से स्प्रेड आउट होता, ठीक है, और एक जो है फ्लूडी ऑरेंज आता है, ऐसा 2-4 पॉइंट्स लिख दो बस है, काफी है, ठीक है। और एक चीज हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी जो है सो बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप उसके जरिए से फेच आउट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है, आप जो है सो देखो हिस्टोलॉजी में इतने सारे स्लाइड्स है कि आप हर स्लाइड को याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बेसिक कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, जैसा कि अगर आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में आया तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ ये तो यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको कोई स्टमक या इंटेस्टाइन दे रहा तो इट्स लाइक कि कोई ये सीक्रेटरी ऑर्गन है। अब सीक्रेटरी ऑर्गन जो है सो कॉलमनार एपिथेलियम जो है सिक्रीशन करने में मदद करता, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर गॉबलेट सेल्स न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स रहते हैं, ये आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे बेसिक आइडियाज को जो है एक बेसिक आइडियाज को एक छोटे से नोटबुक में या छोटे से जो है सो स्टिक नोट्स में एक लिख के रख लो, ठीक है, जैसा कि जो बेसिक बेसिक कॉमन सेंस पॉइंट्स है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में याद आ सके वो पॉइंट्स, ठीक है, जैसा कि हाँ वैसा ही है। एंड एम्ब्रियो में भी सेम, जैसा कि हार्ट क्या बोलते हैं फीटल हार्ट फॉर्मेशन है, वो पूरा लिख के जो है उसके डायग्राम डाल के, एंड अगर आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो विश्राम सिंह में जैसे एम्ब्रियो के वास्ते फ्लो चार्ट्स है, पॉइंट्स है, वहां पर से आप जो है वो फ्लो चार्ट्स रेफर कर सकते हैं आप। एंड ऑल्सो जो है सो आई गेस आप लोग को जो है सो ग्रुप्स में जो है सो अलग अलग PDF सर्कुलेट हुए होंगे एम्ब्रियो के, तो वो PDFs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो है सो एम्ब्रियो में भी जो है सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखो क्लिनिकल जो है ना अप्लाइड अप्लाइड एनाटॉमी हर आंसर में मतलब एक जान है, हर आंसर की जान है, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी जो है सो जान है आंसर की, ठीक है। आपको जो है सो एग्जामिनर जो है सो आपके ऊपर काइंड ऑफ बोल सकते हैं फिदा हो जाता है अगर आप अप्लाइड एनाटॉमी डाले तो, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटॉमी जैसा कि आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट है, आपको जो है फीटल हार्ट के फॉर्मेशन अगर आपको आंसर आया तो आप उसको जो है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट खाली नाम भी लिख दो, काफी है, ठीक है, ओके। हिस्टोलॉजी में जो है सो मैं एक और एक चीज ये बोलूंगा कि डायग्राम्स तो आपको डार्क करना है, ईओसिन और हेमेटोक्सिलिन पेंसिल से भी जो है सो थोड़ा सा एपिथेलियम के बॉर्डर्स को जो है सो और थोड़ा डार्क करो, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है अपन वो जब कलरिंग कर देते तो बॉर्डर्स वगैरह दिख के नहीं आते अपने को, ठीक है। एपिथेलियम के बॉर्डर्स हो या नहीं तो फिर ग्लैंड्स के जो बॉर्डर्स है वो दिख के नहीं आते, तो आप एक काम करो पहले लाइट करके एकदम डार्क करके अंदर के कंटेंट को थोड़ा सा लाइट रखो, बट आउटलाइनिंग जो है आप एकदम डार्क रखो, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, न्यूक्लियस को और डार्क करो, इतना भी डार्क मत कर दो कि आप न्यूक्लियस ड्रॉ ना कर सके, ठीक है, वो आप मैनेज कर लो, और बॉर्डर्स को जो सो ब्लैक पेन से करो, और डायग्राम को बड़ा करो, क्योंकि अपने हिस्टोलॉजी के जनरली जो है सो वो जो रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें जो है सो सर्कल छोटा रहता है, तो अपने को वो डाल डाल के आदत हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करो उसको जो है सो बड़े कोई अपने जो है सो डायग्राम्स के वास्ते एक अलग बुक रख लो, चाहे वो हिस्टोलॉजी हो, चाहे वो ग्रॉस हो, या चाहे वो न्यूरो एनाट हो, ठीक है, किसकी भी हो। एंड हाँ वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, वो न्यूरो एनाट के बारे में है, ठीक है। मैं हिस्टोलॉजी कवर करके न्यूरो एनाट पे आऊंगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी का कैसा है, हिस्टोलॉजी को आप बड़ा डायग्राम करो, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करके डालो, हर चीज को बड़ी बड़ी डालो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कंप्लीट समझ में आना कि अच्छा ये कॉलमनार एपिथेलियम है, अच्छा इसके ऊपर ये स्क्वैमस है, अच्छा ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, अच्छा ये सीरस ग्लैंड है, अच्छा ये म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, पूरा उसको समझ में आना, ठीक है। एंड 6 to 8 points in SAQs are enough, and 3 to 5 points in अगर BSAQ में दिया तो that's enough, ठीक है।
एंड एम्ब्रियो हिस्टो हो गया। अब अपन जो है न्यूरो एनाट के बारे में आएंगे। न्यूरो एनाट जो है काइंड ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वुड आई से, बट मैं ये आपको एक छोटा सा आउट ऑफ द वे जाके रेफर करूंगा कि जब भी आप न्यूरो एनाट कर रहे हैं, आप जो है फिजियो में सीएनएस साथ में कर लेते जाओ, ताकि को रिलेशन से जो है आप आसानी से जो है कर ले सकते हैं, ठीक है। न्यूरो एनाट का भी सेम वही है जैसा कि ग्रॉस में मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम के ही बारे में लिख दो। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, बस डायग्राम के बारे में लिख दो, ठीक है। डायग्राम में आपको लैटरल व्यू में क्या दिख रहा है, आपको मीडियल व्यू में क्या दिख रहा है, आपको पोस्टीरियर सुपीरियर क्या दिख रहा है, इंफीरियर क्या दिख रहा है, वही लिख दो, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल वही है, आप फोर्थ वेंट्रिकल बहुत लोगों को हार्ड दिखता है, बट अगर आप उसको डायग्राम पहले पढ़ लो, फिर आप कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो बहुत आसान है, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग। अब रिवीजन रिवीजन के वास्ते जो टिप्स है वो ये है कि आप हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। अगर आप क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, रनिंग नोट्स बनाते हैं, तो दैट्स इनफ। बट अगर आप अब अभी तक नहीं बनाए तो डोंट गो फॉर द नोट्स, ठीक है। एनाटॉमी के लिए सबसे सिंपल यही चीज है। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप उसको समझ गए, उसको पढ़ने का तरीका समझ गए, तो उससे आसान सब्जेक्ट है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड हाँ, आप जो है पहले डायग्राम्स पे फोकस करो, ठीक है। रिवाइज करते वक्त भी सबसे पहले एक डायग्राम्स के वास्ते एक बुक बना लो, उस पर डायग्राम्स बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। एक बार आप डायग्राम्स पे थ्रो हो गए, आप टेक्स्ट कैसा भी बना के लिख ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अपने को वो आते जाता, अपन कैसा भी जो है उसको अपन स्क्रैम्बल करके लिख ले सकते हैं। बट द थिंग इज क्या, आप डायग्राम्स पे थ्रो आउट हो जाना। रिवाइज करने से पहले पहली चीज जो है वो हाई वेटेज के टॉपिक्स को रिवाइज करिए, जैसा कि हिस्टो और एम्ब्रियो, ठीक है। हिस्टो और एम्ब्रियो को बार बार पहले रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपके 20 to 40 मार्क्स आपके हाथ में आ गए, ठीक है। 20 to 40 मार्क्स आई गेस, जहां तक मेरे को याद है 20 to 40 मार्क्स जो है हिस्ट्री और एम्ब्रियो से आ जाते हैं आई गेस। तो यहाँ पर जो है क्योंकि एक ज्यादा मार्जिन जो हिस्ट्री और एम्ब्रियो से आ रहा है, तो आप हिस्ट्री और एम्ब्रियो को भी कर सकते हैं। 8Com गैस से कोई स्पेशल बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, जो पीडीएफ्स आपके ग्रुप में सर्कुलेट होते हैं वही पीडीएफ्स पढ़ लिया, हाजी सर के जो पीडीएफ्स है वही पढ़ लिया तो बस है। एंड मजल्स के वास्ते, क्योंकि मजल्स जो है चाहे वो अपर लिम के हो, लोअर लिम के हो, जो है मजल्स थोड़ा सा सताते अपने को, एससीक्यूज में आते, बीएससीक्यूज में आते, थोड़ा सा अपन ऑरिजिन इंसर्शन ये भूल जाते। तो मैं क्या करता था कि वो जो टेबल है ना, वो टेबल पढ़ लो आप। आई डोंट नो अबाउट बीडीसी, बट विश्राम में जो है टेबल दिया हुआ है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स रहता, वो बॉक्स पढ़ लो, आपको हर चीज जो है क्लियर हो जाती है। वो बॉक्स अगर आप मजल्स कोई क्वेश्चन में पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा कि कोई अगर आपको पूछा मसल जैसा कि एडक्टर मैग्नस फॉर एग्जाम्पल, या सार्टोरियस, कोई भी मसल पूछा, तो आप उसको वैसे ही फॉर्म में लिखो, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में ही लिखो। क्या होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है। एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के वास्ते एक और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो हफ्ते में एक दिन ऐसा बना दो कि आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है 3 घंटा लेके सॉल्व कर सके, ठीक है। 3 घंटे में वो पेपर हो जाना, तो वैसा भी जो है आप टाइम मैनेजमेंट को जो है क्या बोलते हैं आप, टाइम मैनेजमेंट आपका इंप्रूव होता। एमसीक्यूज 10 to 15 मिनट्स में कर लीजिए अप्रोक्स, दैट्स द मैक्सिमम इनफ टाइम। 15 मिनट्स में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ आई गेस, बट फिर भी बात क्वेश्चन थोड़े ऑड्स एंड ऑड क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए टाइम जाता, तो 10 to 15 मिनट्स। एलएक्यूज 50 to 60 मिनट्स, एक क्वेश्चन के लिए 25 to 30 मिनट्स। अब इसमें आप ऐसा डिवाइड करो ये 25 to 30 मिनट्स में के डायग्राम को आप लियो 7 to 10 मिनट्स, ठीक है। मैं डायग्राम आपका खत्म हो जाना, डायग्राम्स आपका खत्म हो जाना, ठीक है। और टेक्स्ट क्या है 20 to 23 मिनट्स, ठीक है। एसएक्यूज में भी सेम 70 मिनट्स आप लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और डायग्राम्स के वास्ते आप 3 से 5 मिनट्स ले सकते हैं, और टेक्स्ट के वास्ते 7 to 10 मिनट्स। आप ये यहाँ पर ऐसा टाइम डिवाइड कर लो, क्योंकि क्या होता है अपन टाइम जब डिवाइड नहीं करते तो या तो बाजू का टेक्स्ट को बहुत देर चल जाती है, या तो डायग्राम को बहुत देर चल जाती। तो आप डायग्राम और टेक्स्ट के बीच में भी जो है टाइम डिवाइड कर लो, ताकि आपका टाइम एफिशिएंटली और स्मूथली मैनेज हो सके, ठीक है। बीएसए के इसके वास्ते 30 मिनट्स है, वहां पर आप जो है 1 to 2 मिनट या 3 मिनट ले सकते हैं डायग्राम को, और 3 to 5 मिनट्स आप ले सकते हैं, 2 to 3 मिनट्स आप टेक्स्ट के वास्ते ले सकते हैं, दैट्स इट। लास्ट 2 to 5 मिनट्स अगर इन केस अगर आपके पास बच गए, तो बफरिंग के वास्ते या पेपर एरर्स के वास्ते आप चेक कर ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एनाटॉमी में है कि आप क्लिनिकल पॉइंट्स मेंशन करना ना भूले, और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने को क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। आप पढ़े नहीं, ऐसा कि कोई नई चीज उठा के नहीं देता, आप जो पढ़े उसमें से देता, जो बेसिक आइडिया है, एकदम बेसिक आइडिया है, वो भी अगर आप मेंशन कर दिए, तो आपको जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मार्क्स मिल जाते हैं। देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग,
तो अगर आपको सपोज करो एक एससीक्यू नहीं आ रहा और आप इसके थोड़े बहुत रिलेटेबल पॉइंट्स लिख दिए और अगर आपको 6 में से अगर आपको एक 2 मार्क्स भी आ गए तो वो 2 मार्क्स भी बाज़ वक़्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, पास होने के लिए, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर एनाटॉमी। और अगर कुछ भी डाउट्स है तो इंशाल्लाह अपन Q&A सेशन में देख लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर सफ़ान। तो गाइस आई होप एक अच्छा क्या बोलते हैं आप लोग आइडिया आ गया कि एनाटॉमी पे कैसा फोकस करना है, कैसा क्लियर करना है। व्हाट आई डिड वाज फॉर विश्राम सिंह, उसके डायग्राम्स प्रिटी मच गुड है, एंड मोर फोकस शुड बी ऑन योर एम्ब्रियोलॉजी एंड योर क्या बोलते हिस्टोलॉजी। वेटेज अच्छा खासा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर 1 में न्यूरो एनाट का भी अच्छा खासा वेटेज है, सो डोंट फॉरगेट टू फोकस ऑन दैट। The thing is, why we all, get so much scared about anatomy, क्योंकि पढ़ के भूल जाते हैं अपन। ये मेन प्रॉब्लम रहती है अपनी। सो उसमें टू क्या बोलते टू टैकल टू ये मतलब एनाटॉमी का ये जो मेन प्रॉब्लम है, इसको चलते सो अपन ओवरकम करना है बोले तो आप क्या है, डेली बेसिस पे इसको पढ़ना पड़ता है। उसको क्या है, बार बार एक बार रिवाइज करना, बस खाली ऊपर से देख ले तो जा, हाँ ऐसा मतलब ऐसा चलते सर टेक्स्ट बुक में देखो, ब्रैकियल प्लेक्सस है, इसमें इतने ब्रांचेस थे, इसके ये क्या तो ये रूट्स है, सी सी क्या है वो सर्वाइकल रूट्स जो भी रहते, वो खाली एक बार देख लेते गए तो अपन क्या है, अपना रिकॉल होते रहता और दिमाग में चलता रहता, तो एग्जाम तक उसको नहीं बोलते। पॉइंट ये है, मेन पॉइंट ये है कि उसको आप समझ के पढ़ना, रट्टा नहीं मार सकते आप एनाटॉमी। नेक्स्ट थिंग इज जैसा मैंने बोले आप जैसा लाइक सफान सेड, डायग्राम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट डायग्राम्स देर इज नो एनाटॉमी। विदाउट डायग्राम्स यू आर गोइंग टू फेल, इट्स यू आर गोइंग टू फेल। आपका जितनी भी नॉलेज गेन कर लो, जितना भी पेपर में आप भर दो, अगर आप डायग्राम्स में हमारे डायग्राम्स चलते सो नहीं डाले उसमें, तो इट्स लाइक ए सुसाइड, ठीक है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। So next we will move on to little more brief about IMSA. So bear with me. After this, inshallah, we'll continue with our Q&A session. So our aims and objectives in IMSA, is to mainly focus on academics, then personality development, and we have these extracurricular activities. Then regarding social welfare, we here focus on, serving the communities through, free medical camps and awareness program, guidance of youth and society, especially about the importance of education at school and, college level. To encourage the balance between ideology of Deen and Dunya in Muslim community, this is one of the main focus, part of IMSA, where we focus it a lot. Then I'll give a small intro, on the committees which we have at IMSA. Firstly, we have the academics committee, to help or the medicals, to focus on your studies and क्या है जो भी guidance है था आपका in second year, third year, and the final year. Then under this committee we have certain projects. So these for this tenure we have taken UG guidance for university exams, then NEET PG resources or study groups, like Zoom sessions and all. Then we have also conducted 2 to 3 USMLE sessions, in which we have invited Dr. Hafiz. He cleared his first step USMLE. Then next is PLAB MRCP community. Then we have internist doctor community. So here the screenshot of those groups. Then after academic committee, we have Tarbiyat committee. In this domain, we aim to inculcate the qualities of communication. So what are the qualities like communication skills, ethics, leadership, and networking through an Islamic perspective. Okay, a better Muslim, a better doctor, keep bringing out the change they want to see in the society as per Sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So ऐसा नहीं है कि हम क्या है मेडिकल बन जा रहे हैं. What is the difference between a Muslim and a non-Muslim studying medicine? So there should be some ethics and there should be some some boundaries and limitations we should follow in our daily life.
under the divine guidance of Islam. ठीक है? Next, what all activities we have planned is Quranic study circle, and then one day तालीम तबीयत program at a masjid, online या फिर offline सीरत नबी का quiz program भी हुआ. Personality development workshops, so like personality development workshop plan कर रहे, we would be inviting Munawwar Zaman sir. Then we have social service committees. Okay. Then these are all the activities which are planned every year. So important note is that all the social service projects will be organized based on teachings of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and will be focused to make make its impact long lasting rather than just for publicity. Okay. Then we have creative and designing team. Then we have a technical team. Then let's just go to the previous events at EMSA. So here you can just see what all events we have conducted from the past. Since 2020, we are going on, conducting these events. So just have a look. तो हंगर ड्राइव जो कंडक्ट करे थे, द प्रोजेक्ट हेड वाज MD Miraj, president of EMSA. Then orphanage health camp. I hope you all are looking at the screen. Then we have done orphanage donation drive in May 2023. Then recently conduct करे थे program direct EMSA UG guidance and orientation नवंबर में करे थे with the collaboration with DARE. Then orphanage visit भी करे थे रमजान में ये साल मार्च 2024 में. देन कुरानिक स्टडी सर्कल तो आपको मालूम है लाइक रात के टाइम पे जो अपन कर रहे थे, राइट? सो आई होप मेनी ऑफ यू ऑल हैव अटेंडेड these sessions. Then we have the organization structure. We will be providing you all with the links to become a member of EMSA, inshallah. So these are the core team members: president, vice president, general secretary, treasurer, supervising body, in charges for the committees, became member of managing group. Then lastly, I would like to say, in the hall of healing where humanity spirit is reborn, come join us, dear medicos, where compassion thrive and leaders are born, with the stethoscopes as our wands and kindness as dawn. Together we sculpt stories of resilience weathering any storm. So in the end, I ask Allah, oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, goodly provision, acceptable deeds. So I will be providing you with the links to join EMSA. So now let's move on to our Q&A session. Hold on. So yeah, in the chat, you all just need to click on everyone in the meeting and just post your chats, post your doubts, so that we can clear one by one. Assalamu alaikum. If we draw the flowchart for physiology, biochemistry, and anatomy, should we also explain the flowchart or only drawing is enough? So basically देखो flowchart आपको physiology कैसे रहेगा, ठीक है? फिजियोलॉजी कैसे रहेगा फ्लोचार्ट आपको, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो यू शुड ड्रॉ इट इन फिजियोलॉजी. So yes, you have to explain the steps which what all is going on in what all the process going on the normal physiology. तो चार्ट भी डालना है आपको, उसको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करना है समझो.
sir, a strategy so that we can complete syllabus if we start now. Anybody from the speaker would like to answer this? Sir, a strategy so that we can complete syllabus if we start now. अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स थे लास्ट ईयर, जो लोग सिर्फ 1.5 महीना पहले, मतलब डेट्स आने के बाद प्रिपरेशन शुरू किए थे। तो वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन था तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा नोट डाउन करे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर 7 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, वो 7 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से पहले लॉन्ग आंसर्स को निकाले। वो लॉन्ग आंसर्स से डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर के वीडियो देखे, नोट्स बना लिए और उनकी जो नोट्स की पीडीएफ है ना, उसको रिवीजन के लिए रख लिए। उसके बाद वो लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे मूव ऑन हुए और वेरी शॉर्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए वो लोग। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे तो पिछले 7 से 10 साल के क्वेश्चंस पूरे निकाल लो आप लोग। क्वेश्चन वाइज पहले लॉन्ग आंसर्स पूरे कंप्लीट करो, लेक्चर देखो, समझो। समझने में आपका आधा मेमोराइजेशन पार्ट हो जाता। आप सिर्फ नोटबुक पकड़ के बैठे बिना कोई कॉन्सेप्ट के सिर्फ उसको रट्टा मारने बैठे तो 2 दिन में भूल जाते। 10 से 15 मिनट का हार्डली लेक्चर्स रहते राजेश सर के, वो लेक्चर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। मेटाबॉलिज्म्स में थोड़ा डिफिकल्ट रहता, लेकिन आपको बार बार उसको रिवाइज करना है। एग्जाम से कम 3 या 4 बार आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। तो लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको करना जरूरी है। अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन है तो जाम्बुलकर सर के वीडियोस और उनके नोट्स काफी रहते हैं इंशाल्लाह पास होने के लिए, लेकिन मेहनत आप लोग को बहुत करना पड़ता। तो All right. बायोकेमिस्ट्री के लिए बस उतना ही है। Right. So next question, for reference, which notes should we read for physiology? अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं तो वही यूज करिए। अगर नहीं तो रिव्यू बुक्स करके आते हैं, जैसे कि सेम्बुलिंगम भी एक रिव्यू बुक है, तो वो भी बेटर है आई गेस। You all can actually open your mics and ask what all doubts you have, if you want to, or else if you are kind of introverts, you can just throw a chat in the chat box. फिजियोलॉजी कितना पढ़ो याद नहीं रह रहा। फिजियोलॉजी कितना पढ़ो याद नहीं रह रहा। सुमैया, you would like to add something to this? यस सर। अगर मतलब कोई टॉपिक याद नहीं हो रही, जैसा कोई बड़ी टॉपिक है, तो उसको आप वही सेम बोलूंगी मैं कि आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लाने की। वही फ्लो चार्ट को आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे कितनी भी टफ होंगे टॉपिक, वो इजीली ब्रेक डाउन होके अंडरस्टैंडेबल बन जाती है आपके लिए। तो वैसे ही करिए आप, फ्लो चार्ट्स में लाइए आपके आंसर्स को, आपके टॉपिक्स को, तो आपको इजी रहेगा कोई भी चीज याद रखने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के सिलसिले में भी बोलिए। देखिए भाई, प्रैक्टिकल्स अब आपके हुए कि नहीं मान लो सेकेंड इंटरनल्स के, तो प्री फाइनल्स में कैसा भी होते। सो फर्स्ट अटेंड दोस प्रैक्टिकल्स, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाती है कि कैसा होने वाला है प्रैक्टिकल्स। ठीक है, हर एक कॉलेज का अलग अलग वो रहता पैटर्न। सो आप आपके कॉलेज का अटेंड करिए। उसमें क्या रहता भाई, यू विल हैव ऑसी, देन ग्रॉस एंड क्या बोलते हैं, ग्रॉस का ऑसी रहता, फिर स्पॉटर्स रहेंगे, हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स रहेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना, उसके पॉइंट्स लिखना रहता। और देन यू विल बी हैविंग वाइवा। ठीक है, वाइवा में वही थियरी आपका अच्छा पढ़ लिया अगर आप थियरी, तो वाइवा में आपको क्या है, मसला नहीं रहता, कुछ डिफिकल्टी नहीं रहेंगी आपको। सो एक बार आप कॉलेज का अटेंड करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। So next question is, would HAQs be enough for a distinction? If not, what else do I do? Anybody, passed from the speakers who have passed just now, just throw some lights on this, जी जी सर। सर देखिए, आप हाजी अली सर के अगर क्वेश्चन बैंक पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी है डिस्टिंक्शन लाने के लिए। हाजी अली सर की पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि और भी टाइम है मेरे पास, तो टाइम्स मेडिको में जाके थोड़ा चेक कर लो कि कुछ नए क्वेश्चंस, अलग क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसपे ज़्यादा स्टार मार्क्स है ना, तो 1 या 2 वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डरने की या पैनिक करने की। हाजी अली वुड बी मोर देन इनफ। जो सुमैया भी स्ट्रेस करे कि हाजी अली सर की क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट रहती, काफी है वो। और I सफवान would जो एक like बात बोले,
आई वुड लाइक टू व्हाट अवेश सेड, मतलब HAQs और जो फैल्कन के वो इनफ रहते, बट वंस यू गाइस गो थ्रू सिया के क्यू बैंक्स, बिकॉज दे हैव ऑल PYQs रहते उसमें। तो अब लेटेस्ट वर्जन्स तो ना अब थोड़े दिनों के बाद रिलीज होते हैं, और रिलीज भी पब्लिश भी हो गए होंगे। तो आप ना जाके ना 2023 वाली मतलब सिया की क्यू बैंक लेते थे, लो लो, लाइक इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू मी। लाइक मैं 2010 तक के क्वेश्चंस पढ़ती थी उसमें। तो मतलब उसमें ओवरऑल भाई HAQs के भी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, टाइम्स मेडिको भी के भी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और वो एक ही बुक में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स के भी मिल जाते। तो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइस टू बाय अ CRQ बैंक। जी शुक्रिया। और एक चीज जो सफवान बोले थे, मैं वो भी रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग को फिजियोलॉजी में बहुत सारे कॉलेजेस में ये गलती करते हैं कि वो लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट से बिना पूछे, बिना ये समझे कि एनाटॉमी में न्यूरो एनाटॉमी खत्म शुरू करने से पहले ये लोग CNA शुरू कर देते, जो कि एक बकवास चीज है। और बिना आप न्यूरो एनाटॉमी समझे जब आप फिजियोलॉजी पे जाते, जब आप एग्जाम्पल सेरेबेलम ले लिया या फिर बेसल गैंग्लिया, ऐसे क्वेश्चन में न्यूक्लियाई के नाम करते वो लोग, क्या बोलते हैं, सर्क्यूट्स एक्सप्लेन करते, पूरे न्यूरल कनेक्शंस, नथिंग विल मेक सेंस। तो हमारे कॉलेजेस में एक बहुत गलत सिस्टम है। तो इसीलिए आप लोग पहले न्यूरो एनाटॉमी जब पढ़ रहे हैं ना, सफवान जो बोले, न्यूरो एनाटॉमी एग्जांपल आप जैसे ही सेरेबेलम टॉपिक पढ़े, जैसे ही बेसल गैंग्लिया करें ना, तो यू विल बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ द टर्मिनोलॉजीज कि न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई का लोकेशन क्या है। तो उसके साथों साथ आपको उसका न्यूरल सर्क्यूट्स और कनेक्शंस फिजियोलॉजी समझना है, तो इमीडिएटली जंप ऑन टू फिजियोलॉजी। बेसल गैंग्लिया की न्यूरो एनाटॉमी कर लिए, उसके साथों साथ ये लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट हो जाता आपका फिजियोलॉजी में। तो न्यूरो एनाटॉमी और CNS फिजियोलॉजी दोनों को एक साथ चल के पढ़ना बहुत बेनिफिशियल रहता है, और इजीली समझ जाते हैं आप लोग। क्योंकि फिजियोलॉजी विदाउट अंडरस्टैंडिंग न्यूरो एनाटॉमी विल सीम क्लूलेस, सिर्फ रट्टा मारते आप अगले दिन भूल जाते फिर से। जी, आयशा that's it. was आयशा, यू आर टेलिंग समथिंग, जो ना कुछ एड्रेस करते हैं आप। हाँ यस, पहले एक रिजवानुद्दीन बोल के एक क्वेरी करे थे, देखिए बायोकेमिस्ट्री के फ्लो चार्ट्स कैसा याद करना जो नहीं हो रहे। देखो बोलते तो अपन की रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन करना एक स्ट्रैटेजी करके रिवीजन करना इज बेटर देन लाइक अपन चलो कर रहे करेंगे करेंगे बोले जैसा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं खाली सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के मतलब स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो फ्लो चार्ट्स रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी दूसरे फ्लो चार्ट्स जो कि मतलब अंडरस्टैंडेबल ज्यादा नहीं रहते, जिसको ज्यादा मगअप करना पड़ता, उसके लिए मैं ये चीज को एड्रेस करूँ कि आप जो है एक चार्ट, बेसिकली एक बड़ा चार्ट लेके उस पे क्या थोड़े बहुत ऐसा क्या पार्टीशन करके उसको डिवाइड करके हर फ्लो चार्ट को लिखो। मैं तो सारे पूरे फ्लो चार्ट्स मैं लिखी थी, बट जो जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको नजर आ रहे, जो मतलब नहीं बस इतने ही फ्लो चार्ट्स, इतने मेटाबॉलिज्म के फ्लो चार्ट्स मैं बार बार याद कर लूँ तो बस है बोल के जो आपको नजर आ रहा वो आप लिख लो। लिख के यू हैव टू स्टिक ऑन वॉल, स्टिक करो आप उसको और हर दिन रिफर करो। और एक टाइम तो ऐसा आ जाता कि रिफर मतलब वो सामने नजर आ गया तो भी देख, अरे नक्को भाई कितने बार देखना है इसको, लेकिन आपको उसमें से कुछ आता नहीं। लेकिन आपको कैसा होता है ना, नहीं नहीं बार बार कहीं को देखूं, बार बार कहीं को देखूं, नहीं हो रहा भाई बस इसको देखने से तो बेहतर है कि कुछ और निकाल के पढ़ लूं। तो उसके लिए भी क्या है बोल के बोलते ना, व्हाट आई डिड कि जब एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले जब ऐसा था, तो लंच आवर्स में जैसे अपन नमाज के बाद खाना वगैरह खाने के बाद अपने को नींद आती, तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि वॉल पे स्टिक करके है ना, तो आई यूज टू स्टैंड फॉर 1 आवर। ये वो टाइम पे अगर आप ठहरे हुए रहो तो नींद नहीं आएंगी बोले जैसा, मैं ठहर के वो चीज को प्रैक्टिस करती थी, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। क्या ठहर के प्रैक्टिस करना नहीं बोल रहा मैं, चार्ट्स मेक करना इज बेनिफिशियल फॉर यू। आप चार्ट्स मेक करके आप उसको बार बार रेफर कर लेते रहेंगे। आप लाइक मॉर्निंग इवनिंग जैसा अपन जैसा नीट के लिए सब पढ़ते थे वैसा उतना सबकी जरूरत नहीं है अपने को। देखो इंपॉर्टेंट चार्ट्स को आप लिख लो और इसी को आप बार बार ये कर लेते रहो। और कैसा मालूम है, एक हाईलाइट एक डिफरेंट कलर पेन से आपका पूरा फ्लो चार्ट भी कैसे रहना बोले तो एक कलर पेन से एक पेन से रहना। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं आप पूरा फ्लो चार्ट लिख लो। और जो एंजाइम्स है मतलब एक स्टेप में अगर ये आपके लाइक अगर समझो एक एंजाइम इसको दूसरे वे में अगर कन्वर्ट कर रहा, तो आप एंजाइम्स को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करो और वहां पे अप्लाइड यानी कि वो एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपको क्या डिजीज आता, मैं उसको भी एक और कलर पेन से लिख देती थी। तो ऐसा करो मतलब आप आपके पूरे प्रोसेस में नेविगेशन करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते आपको सामने आ जाती वो चीज। तो फ्लो चार्ट्स के लिए ऐसा है। और एक एनाटॉमी के लिए बोले देखिए क्या कि कलर पेन से मतलब टाइम कंज्यूम होता करे तो और या फिर ब्लैक पेन से अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिर से उसको रिपीट ड्रॉ करने के लिए टाइम देता है। रिपीट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो लाइन डायग्राम्स इनफ है।
आपको बोलते सो आर्टिस्टिक बनानी है, जैसा कि सफान ऑलरेडी बोले। तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइन डायग्राम सीखना है। अब उसके लिए भी कैसा सीखना है, तो आपको देखो 1 मंथ जो मिलता आपको, अभी तो मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन मैं जब करी थी तब की बात बोल रहा हूँ मैं। तो कैसा था, आपके पास आपका खुद का फ्री टाइम था। यू नीड नॉट टू गो फॉर लाइक अटेंडेंस के चक्कर वगैरह, ये सब की आपको जरूरत नहीं थी। जब आपको खुद ही से अपना टाइम देके खुद आपको पढ़ने का है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि मैं जो है एक डायग्राम बुक बोल के एक नोट्स रख दी थी। तो क्या रहता था बताओ, अब एग्जाम्पल अगर आप क्लैविपेक्टोरियल फेशिया पढ़ रहे हैं, क्लैविपेक्टोरियल फेशिया पढ़ रहे हो, तो आपको रिलेवेंट डायग्राम्स क्या है, तो मतलब उसके रिलेशंस, उसके एंटी रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस कैसा कैसा कवर होते हैं, लाइक कैसा कैसा है सब आपको एक डायग्राम मिल जा रहा है। लाइक विश्राम सिंह में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन है वो डायग्राम। बीडी जोसेफ में तो नहीं है वो चीज। तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो भी मतलब अब ये कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर दिख रहा, तो आई यूज टू सर्च ऑन गूगल कि उसका रिलेवेंट उसके रिलेशंस भी कवर हो, जैसा कौन सा ऐसा डायग्राम है। तो फर्स्ट वो टॉपिक लेके डायग्राम बुक में आई यूज टू ड्रॉ, मतलब कैसा कुछ भी आर्टिस्ट नहीं, पेन से ही आप ड्रॉ करो। आपको पेन की आदत होना जरूरी है भाई, आपको पेन की आदत होना है, पेंसिल से नहीं, पेन से ड्रॉ करो वो बुक में। आप वो पूरी बुक जो है डेडिकेट कर दो क्या, डायग्राम के वैसे एनाटॉमी के नहीं, मैं हर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी डायग्राम आ जा रहा आपको, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जब भी कोई टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं, तो आप उसका डायग्राम पहले देखो कि उसमें पूरे रिलेशंस वगैरह पूरे मतलब कंसिडर हो सक रहे हैं या नहीं, पूरे रिलेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे। जो रिलेवेंट डायग्राम दिख रहा है आप उसको पिक करो, उसको आप ड्रॉ करो, ठीक है। और अगर आपके बुक्स में जो भी बुक आप प्रेफर करें, लाइक अगर आप विश्राम से प्रेफर कर रहे हैं, फिर बीडीसी आप प्रेफर कर रहे हैं, वो डायग्राम नहीं है वहां पे, तो आप एक मार्क करके रख लो कि नहीं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम अलग से निकाला था या निकाली थी, और ये बुक में है बोल के आप फोल्ड करके रख लो पेज को। उतना ही है, रिवीजन स्ट्रैटेजीज बोले तो इतना ही है। और अननेसेसरी स्टफ डालने की आपको जरूरत नहीं है आपके क्या एग्जाम पेपर में। सिर्फ और सिर्फ क्या, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब ऐसा भी नहीं करना हर किसी को हाईलाइट कर लेते नहीं बैठना, सबको अंडरलाइन कर लेते नहीं बैठना। जो आप लिख रहे हैं थोड़े बहुत जो मिनिमम मतलब क्या जो दिखने वाले पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कर लेते रहो, उतना ही। राइट। तो समवन वर आस्किंग आप शुरू करें तो अपन क्या बोलते हैं, अपना सिलेबस खत्म हो जाता क्या बोल के पूछ रहे। तो यस डेफिनेटली, टाइम बहुत है आपके पास, टाइम बहुत है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन सुकून से पढ़ ले सकते। टाइम बहुत इसलिए है ताकि आप पूरा सिलेबस कवर कर सके। सो क्या कवर करना है आपको? यू हैव टू जस्ट गो फॉर 15 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और HAQ में भी पूरे वो कवर होके है। If you are following HAQ, so start from now and खत्म करते जाओ, ठीक है। So we'll move on to next query. कितने hours पढ़ना daily so that we can complete syllabus, because classes are going on, unable to spend sufficient time. अब देखिए भाई, आप लोगों का क्लासेस चल रहे हैं ना अभी, प्री फाइनल्स के बाद हॉलीडेज मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। जब तो इनफ टाइम रहता फॉर नाउ। आप क्या करो, अभी प्री कॉलेज से आ रहे, आके थोड़ा रेस्ट ले लो, देन स्टार्ट कर लो जो भी पढ़ना है। तो उसमें लीजर टाइम निकालो आप, ठीक है। आओ ख़त्म करो जो भी सिलेबस है प्री फाइनल्स का, ख़त्म कर दे के फेंक दो पूरा, ठीक है। तो उसके बाद तो आप प्री फाइनल्स के बाद छुट्टियां मिल जाती है आपको, सुबह से शाम तक इनफ टाइम रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्री फाइनल थियरी के लिए एनी स्पेसिफिक एडवाइस जस्ट विद इन अ मंथ रहेगा। वही जो भी बोले, न्यू टॉपिक्स मत जाओ आप, जो हुआ वही पढ़ो, ठीक है। जितना खत पढ़े उसको रिवाइज करो। सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक से, बिकॉज आप एक बार पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे, क्या क्या पूछ रहे क्वेश्चंस और कहाँ से पूछ रहे, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो कि कितने के टॉपिक्स रिपीटेड है। तो उतना स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रीवियस 15 to 20 years कर लो आप, दैट इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन वाइज पढ़ना अच्छा होगा या चैप्टर वाइज, मतलब अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेंगे? इधर वी शुड गो क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज। सर आई थिंक चैप्टर वाइज पढ़ना बेटर रहता सर, क्योंकि अक्सर टॉपिक्स ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते, तो आप एक आंसर करें तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूसरे का आ जाता, देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन, वही वही चैप्टर के।
तो रैंडम करने से अच्छा एक चैप्टर को पकड़ो, उसको खत्म करो, फिर मूव ऑन टू अनदर चैप्टर। तो या बराबर। और अब सर बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे मेटाबॉलिज्म्स में स्ट्रगल करते हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं और वो लोग को मुश्किल भी दिखता, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्टली दोस्तों के नोट्स या फिर रैंडम पीडीएफ्स लाके उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में ऑल दो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट समझने से आंसर ईजी हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में अगर आप ये बेसिक समझ गए, उसका स्ट्रक्चर समझने के बाद आप वो ब्रेक डाउन कैसा हो रहा, पहले उसका ब्रांचिंग हो रहा, तो ब्रांचिंग होने के लिए मालूम है कि अल्फा 1,6 लिंकेज रहता, तो अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज। तो ये एक कॉन्सेप्ट से आपको एक स्ट्रक्चर आ जा रहा आंसर का, ब्रांचिंग के बाद हो रहा, तो जो लीनियर चेन है, लीनियर चेन ब्रेक डाउन हो रही, तो लीनियर चेन में अल्फा 1,4 लिंकेजेस है। तो आप एक छोटा कॉन्सेप्ट याद रखने से आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आंसर लिखने में, कि अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज पहले आता, फिर अल्फा 1,4 आता। तो आप लोग को बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो वीडियो देखना जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखते आप आंसर रिटेन नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। सिर्फ आप नोटबुक पकड़ के रट्टा मारते बोले तो नहीं जमता वैसा बायोकेमिस्ट्री को। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट का भी अप्रोच रखो, समझो आंसर को क्या हो रहा कैसा हो रहा, उसके बाद आप आधा उधर ही मेमोराइज कर ले सकते लेक्चर देखते वक्त। दैट्स इट सर। Right. Okay. So for embryology notes, where can I find the PDF? पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह टेलीग्राम पे, और ग्रुप में भी एक बार पूछ देता हूँ, कोई भी भेज देते हैं आपको। विल लुक इनटू दैट। प्री फाइनेंस एंड फाइनेंस के बीच अप्रॉक्स कितने दिन का टाइम रहता? अब डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। अगर आपका कॉलेज लेट कर रहा तो कम टाइम रहता, तो इट विल बी लाइक प्रिपेयरिंग मोर। अगर देर से कर रहा तो मतलब आप प्री फाइनेंस में आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब टाइम ज़्यादा मिल जाता, तो इससे क्या है फाइनेंस का भी कवर हो जाता। वही अगर कम टाइम है तो आप वो जो बीच का गैप है उसमें कवर कर ले सकते हैं आप। एनाटमी में ज्योरी के नोट फॉलो करें तो इनफ है। यू हैव टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ठीक है, ऑलरेडी रिप्लाइड। रिविजन शुरू हो गया, उस पर चल रहा, सो सिलेबस कैसा करना पड़ रहा। देखिए भाई, आपको दो चीज़ें, केएनआरएचएस के ग्रुप में रिवीजन शुरू हो गया, उसको और चल रहा सा सिलेबस कैसा पैरेलल करना। देखो भाई, फॉलो वन थिंग, दो चीज़ें फॉलो मत करो, आप एक ही चीज़ फॉलो करो, ठीक है। आइदर दैट केएनआरएचएस ग्रुप और योर कॉलेज, ऐसा फॉलो करो, ठीक है ना। दो फॉलो करेंगे तो मजअप हो जाता। आई थिंक क्लॉक रहती है एग्जाम में, फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट वी विल हैव वॉल क्लॉक और रिस्ट। ना, रिस्ट वॉच तो अलाउ नहीं करते आई गेस, थोड़ा जगह करते होंगे, कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो वॉल क्लॉक रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक बार पढ़े तो समझ आ रहा, बट सब कुछ नहीं लिख सके उतना टाइम में। तो ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ये एक बार पढ़े तो समझ आ रहा बट सब कुछ नहीं लिख लिख सक रहे उतने टाइम। दिया डाल के उतनी थियरी लिखे तक बहुत टाइम हो जा रहा, सो जोरी नोट्स लिखे तो इनफ है क्या? देखो भाई, नोट्स में जो है वही आपको छापना है। नोट्स आर बेसिकली कंसाइज थिंग, तो दैट इज बेसिकली मोर देन इनफ। एग्जाम आपको क्या है, एग्जाम में और आपको कंसाइज ही लिखना है। एकदम पूरा बल्क लिख दे तो क्या है, उन्हें करेक्शन करने वाला भी पागल हो जाता, उन्हें काट के फेल कर देता। ठीक है, तो जो नोट्स में है वही लिखो, अच्छा प्रेजेंट करो, मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। एनाट के डायग्राम्स को कलर नहीं करे तो चलता, इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड कलर दोज डायग्राम्स, बिकॉज थोड़ा अच्छा दिखते वो डायग्राम्स, ठीक है, कलर करे तो। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ कलरिंग में टाइम निकाल दो, पहले प्रैक्टिस करो, आप डायग्राम्स कलर करना सीखो, कलर पेंसिल से करो, तो क्या है, हो जाता आपका मतलब कलरिंग का क्या है, या बराबर।
पेन से ड्रॉ कर रहे तो पेन से मत करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है, इट विल बी बेटर। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में अच्छा स्कोर कैसा करना? अब देखो भाई, आप कौन से कॉलेज के हैं, वो कॉलेज में एक बार सीनियर से पूछो कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होता। तो हमारे पास कैसा है, मान लो हमारे कॉलेज में सीनियर्स हमारे को पीडीएफ देते, सीनियर्स हमारे को क्या है पीडीएफ देते थोड़े। वो पीडीएफ में क्या है, पूरा पहले का मतलब क्या है, जो भी स्लाइड्स रहते, जो भी ऑसी रहते, वो पूरा रहता। ओके चलो, जो कॉलेज में सीनियर्स नहीं है वो लोग क्या करो, आपके जब भी प्रैक्टिकल्स होंगे, जो भी स्लाइड्स रहते हैं ना आपका, वो स्लाइड्स के फोटोज ले लो, उसके नीचे नाम लिख लो कि ये स्लाइड है, पूरे फोटोज लेके पूरा एक पीडीएफ बना लो, एक जगह हो जाता, एक जगह हो जाता आपका। तो फिर वही एग्जाम में भी आपको वही क्या बोलते, स्लाइड्स के एंड स्पॉटर्स के बारे में पूछता, उससे हट के कुछ नहीं पूछेगा। एक्सटर्नल्स भी आएंगे, आके आपको क्या है, वो जो आपके कॉलेज में है उसमें से चूज करके एग्जाम में रखेंगे। तो ऐसा कर लो। नहीं, अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी हो रही तो एक बार ग्रुप में मैसेज करिए आप, दूसरे कॉलेजेस का भेज देते हैं आपको, ठीक है। That's it, right? So should we conclude the session? और चलो, राइट, ओके, वी विल कंक्लूड द सेशन। सो और कुछ भी डाउट्स है आप लोगों के तो यू कैन जस्ट एक सेकेंड, देयर वन क्वेरी। सपोज एक एलएक्यू परफेक्ट है और थोड़े एसएक्यूज एंड थोड़े वीएसएक्यूज परफेक्ट है, बट जो क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं है वो लास्ट में अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। देखो, माय सजेशन इज, आप एक सेक्शन लिखो पूरा, पहले पहले एलएक्यू खत्म कर लो, या फिर पहले एसएक्यू लिख रहे तो पहले एसएक्यू का पूरा सेक्शन खत्म कर दो। जो एसएक्यू नहीं आ रहा बाद में आप लिख अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है, बाद में अटेम्प्ट करना, लेकिन एक ही सेक्शन में लिखो। अगर वैसा अलग अलग दिख दिए तो उन्हें एक्सटर्नल तंग आके फिर क्या है, वो हो जाता है, मार्क्स काटने पे आ जाता हूँ। तो इट्स बेटर आप क्या बोलते सो, पूरा एक ही सेक्शन में लिखो, जो सेक्शन अच्छा था पहले वो लिखो, ठीक है। एक एलएक्यू अगर अच्छा रहा परफेक्ट तो एक एलएक्यू पहले लिख दो, सेकंड एलएक्यू भी आ रहा तो लिख दो, ऐसा है, ठीक है। अगर एसएक्यू का सेक्शन आ रहा परफेक्ट तो एसएक्यू पूरा ऐसा लिख दो, ठीक है। सो ऐसा है। और भी ज़्यादा क्वेरीज आ रहे, तो आप लोग क्या करो इसको, जो अपना मेडिकोस का ग्रुप है, राइट, उसमें आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। सो वी विल कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे, ऑलराइट, विल कंक्लूड द सेशन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।